یہ ہم بلتیج فورٹ پہ ٹکٹس لی ہوئی ہیں. بلتیت کے اوپر آئے ہوئے ہیں, مطلب بلتیت فورٹ جو ہے نا وہاں پہ. تو ابھی بلتیت فورٹ پہ پہنچتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں. یہ سٹنگ ایریا ہے, یہ میرے بھائی پھر رہے ہیں یہاں پہ. یہ فروٹس وغیرہ لگے ہوئے ہیں, تو جو ہے نا یہ دیکھ لیں, یہ فریش فروٹس خوبانی کا ہے یہ درخت. یہ ایپلس کا ہے, یہ دیکھ لیں آپ کو ایپلس. اور بھی دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں ایپلس, یہ سارے لگے ہوئے ہیں فریش فریش. یہ بھی ایپل کا ہے درخت. سیب کا, یہ خوبانی کا ہے. یہ پھر سیب کا آ گیا ہے. یہاں پہ نیچے ہے سیب ایپل, تو میں آپ کو ہاتھ لگا کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں ابھی یہ پکے نہیں ہیں, کچے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ کو لائیو دکھا رہا ہوں میں. یہ سٹنگ ایریا انہوں نے بنایا ہوا ہے. ابھی ہم نے جوس کا آرڈر کیا ہوا ہے, فریش جوس خوبانی کا. جیسے آتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھ لیں خوبانی لگی ہوئی ہے فریش فریش. یہاں پر بھی یہ دوسرا درخت ہے خوبانی کا, کافی زیادہ یہاں پہ درخت ہیں خوبانی. سیب, یہ دیکھیں آگے پھر سیب کا ہے. یہ باہر آؤٹ سائڈ ہے, اور یہاں سے پھر ہم جائیں گے اوپر بلتیت فورٹ کی طرف. یہ دیکھیں یہاں سے ہم باہر جائیں گے یہ بلتیت فورٹ کی طرف. ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں ایک بچہ گھوم رہا ہے یہیں کا. آ رہے ہیں بھائی, دیکھیں آپ کو جوس دکھاتے ہیں, فریش جوس. ٹھیک ہے, یہ بغیر پیتا آپ کے لیے میں نے بادام میں ڈالا ہے, کمپلیمنٹری ہے. تھینک یو جی, تھینک یو. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو. یہ دیکھیں جی ٹیسٹ کیسے ہیں بھائی. یہ ایک اور کر دو, ایک منٹ پی کے دیکھنا, جلدی بتا دو, پھر نہ کہنا کہ میں تو نہیں دوں گا. ایک اور. آپ کو ویٹنگ ایریا دکھاتے ہیں بلتیت فورٹ کا. یہ ویٹنگ ایریا ہے ان کا, زبردست یار. یہ آپ کو چیک کراتے ہیں ابھی اندر سے. یہ میرے بھائی جا رہے ہیں. یار بیوٹیفل, اسی طرح ہوتے ہیں یار, زبردست لیول ہے. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, What a feel man. It's a level. یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں. یہ میرے بھائی بیٹھ رہے ہیں ویٹنگ ایریا میں. تو یہ آپ کو سارا ویٹنگ ایریا وزٹ کرواتا ہوں میں آپ کو. تو یہ دیکھیں سامنے بلتیت کا ہے, اور یہ میں ابھی سامنے بیٹھنے لگا ہوں. آپ کو یہ دیکھیں, یہ بیٹھ کے جی ہم, یہ سارا ایریا ویٹنگ ایریا کا ہے. اپنے سر کا خیال رکھیں. میرا نام سلطان ہے, میں ٹور گائیڈ ہوں. سو ہم آپ کے ٹور کنڈکٹ کریں گے پلیز. انزا میں سر 2 قلعے ہیں, التیت اینڈ بلتیت. ایک ہی راجہ نے 2 قلعوں کو بنایا تھا. جس قلعے میں آپ کھڑے ہیں اس قلعے کا نام بلتیت فورٹ ہے. یہ 800 سال پرانا قلعہ ہے. 1945 میں یہاں کا جو میر تھا, ان کا نام میر محمد جمال خان تھا. انہوں نے اس قلعے کو 1945 میں چھوڑا تھا. سو 1945 سے لے کے 1990 تک قلعہ خالی رہا. ان 45 سالوں میں اس کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی, دیواروں کی خستی حالت ہوئی تھی. 1990 سے 96 تک اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے. ان 6 سالوں میں اس قلعے کی رینوویشن کی گئی ہے. AKCSP آغا خان کلچر سروس پاکستان نے اس قلعے کو رینوویٹ کیا ہے. 29 ستمبر 1996 اس زمانے کا جو صدر تھا فاروق احمد خان لغاری, ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان, 12 ممالک کے ڈفرینٹ ایمبیسڈرز نے اس فورٹ کو میوزیم کے طور پہ اوپن کیا گیا ہے. ہنزا کے عوام ہم ٹیکس پیئر تھے. ٹیکس جو ہے
गंदम की शक्ल में मीर और फुंजा को दिया करते थे। ये अनाज के ज़खायर हैं। इस किले में इसी तरह के तकरीबन 7 थे। यहाँ पे स्पेशली अनाज गंदम रखी जाती थी। सामने जो टेबल पे लगे हैं स्केल्स हैं, मेजरमेंट्स हैं, लोगों को हिसाब से दिया भी जाता था और उनको हिसाब से लिया भी जाता था। आप पैमाने भी कह सकते हैं, इसका ख्याल रखना प्लीज़। दरवाजे छोटे होने का मकसद यहाँ पे टेम्परेचर है। अभी भी दिसंबर जनवरी में जो टेम्परेचर है कभी कभार -15 से लेके -20 तक चली जाती है। इस वजह से इन छतों और दरवाज़ों को छोटा रखा गया है। टूर स्टार्ट कर लेते हैं। टूर स्टार्ट करने से पहले अपना अपना सर का ख्याल रखना। जिस रूम में अभी आपको लेके जाऊंगा ये उस जमाने का जेल था। हवालात थी, लोगों को कैद किया जाता था, ज़्यादा देर बिठाया नहीं जाता था। किसी का क्राइम ज़्यादा हो तो स्पेशली इनको इलाका बदर किया जाता था। सब मेहमानों से रिक्वेस्ट है, दरवाजे के 2 हिस्से हैं, सर का ख्याल रखना प्लीज़। नहीं, ये तो उनका वो होगा ना। ये उस जमाने का मुहाफिज खाना था सर जी। आप इसको गार्ड रूम कह सकते हैं। ये उस जमाने का गार्ड रूम था। ये यहाँ के लोकल ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं। दरम्यान में जो है फीमेल ड्रेस है, ये जो है सर जी फीमेल ड्रेस है और आपके सामने जो है सर जी मेल ड्रेस है। सामने जो है सर जी हम लोग शुका कहते हैं, उर्दू में आप इसको चुगा कह सकते हैं। ये ट्रेडिशनली मेल ड्रेस है सर जी। अभी भी हम लोग किसी मैरिज ओकेजन में इसको पहनते हैं। इसका साइज का लंबा होने का मकसद, जब उस ज़माने में लोग ट्रेवल करते थे तो रज़ाई के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता था। पूरी बॉडी को कवर किया जाता था। आपकी बैक साइड पे जो विंडोज हैं, वॉच टावर के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ से बाहर लोगों को सुपरवाइज किया जाता था, बाहर लोगों का नकल हरकत देखा जा सकता था। ये ऊपर दुनिया के नक्शे हैं, वर्ल्ड मैप से 1550 के 1550 के दुनिया के नक्शे हैं। लैटिन, फ्रेंच और इंग्लिश में लिखी गई है। साथ मेहमानों से रिक्वेस्ट है, आगे दरवाजा छोटा है, सर का ख्याल रखें। एवान मजलिस से शुरा था सर। सिक्योरिटी प्लानिंग हॉल थी। लिविंग रूम के तौर पे भी इस रूम को इस्तेमाल किया जाता था। ये ट्रेडिशनली हुंजा का देसी घर भी है। आपने ये कहना कि हमने हुंजा का हुंजा में अभी भी हम लोग इसी तरह का एक घर बनाते हैं, स्पेशली गम खुशी के मौके पर फैमिलीज को इकट्ठे बिठाने के लिए। हम लोग अभी भी नीचे आज भी हम लोग नीचे फर्श पे बैठते हैं, फर्श पे खाना खाते हैं, फर्श पे सोते हैं। दरमियान में कुकिंग की जाती थी, यहाँ पे खाना बनता था। चिल्ड्रन एल्डर्स बिठाए जाते थे। ये जो स्टेप्स बनाए गए हैं, these are the sleeping areas also। सोने की भी जगह थी। सामने जो कारपेट है वो खारा कारपेट है, उज़्बेकिस्तान में बनी है। 150 साल पुरानी कारपेट है। आपकी बैक साइड पे कश्मीरियन डिज़ाइन की जैक्सन ग्लास है, हम लोग समावार कहते हैं। ये कश्मीर से लाई गई है। 17th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक ये कश्मीरियन डिज़ाइन की जैक्सन ग्लास है। अभी आपको रॉयल किचन दिखाते हैं, सर का ख्याल रखना प्लीज़। आया मजा? बहुत मज़ा आया। बहुत लेवल की जगह है यार। अगर ये ना देखते ना वाकई गुजारने का कोई बेनिफिट नहीं, फायदा ही नहीं। इनके जो हुंजा के फंक्शंस होते हैं वो हमें कोई आइडिया नहीं है कब होते हैं। वो पता नहीं कहाँ ट्रेडिशनल जो होते हैं। आप लोग हमें छोड़ते भी नहीं हो, फिर हमें कहते हो कि हमजा का फंक्शन हमें दिखाओ। हम मेहमानों को वेलकम करते हैं, उनको ट्रेडिशनली, उनको लोकल तरीके से। माँ बहनें जो होती हैं उनको हम अलग बिठाते हैं। आप क्यों जला रखी है? ये वैसे ही है बड़ा। ये बाला बहन है ना। ये उस जमाने का रॉयल किचन था, शाही बावर्ची खाना था। यहाँ पे राजा और इनकी फैमिलीज के लिए खाना पकाई जाती थी। सामने जो है सर जी कुकिंग एरिया है। कुछ चीज़ें मेटल की चीज़ें हैं, चाइना से लाई गई, 400-500 साल की चीज़ें हैं, बाकी पत्थर के बनी हुई हैं। सामने तवा है जिसमें हम लोग उस जमाने में रोटी पकाते थे। ये रोटी पकाने के लिए ये तवा है। तवे के बिल्कुल ऊपर ही राउंड सर्कल में वुडन स्पून्स है, हम लोग लाउडो कहते हैं।
नूडल टाइप के सूप के लिए, या छमूस कहते हैं, एप्रिकॉट जूस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। तवे के साथ नीचे ग्राइंडर्स हैं, गंदम की पिसाई के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता था। इनकी बैक साइड पे पम्पकिन्स है, कद्दू के जग्स हैं, बाहर चैनल या ग्लेशियर से पानी लाके इन बर्तनों में स्टोर किया जाता था। सामने मशकीज़ा है, लस्सी बनाई जाती थी। ये मशकीज़ा है जिसमें हम लोग उस ज़माने में लस्सी बनाते थे। ये वुडन लंबा अभी भी घरों में जब लाइट नहीं होती तो इसमें हम लस्सी बनाते हैं। वेंटिलेशन प्लस धुएं के लिए इस खिड़की को इस्तेमाल किया जाता था। लोकल ज़बान में इसको सगम कहते हैं। आपकी बैक साइड पे छोटी सी स्टोर है, उस ज़माने में फ्रिज के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता था। दीवार की बैक साइड पे ग्लेशियर था, ये फ्रिज के तौर पे इस्तेमाल करते थे। जो भी चीज़ ठंडा रखने के लिए एज ए रेफ्रिजरेटर के तौर पे ये काम किया करता था। अभी इसकी बैक साइड पे कोई ग्लेशियर नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये मेल्ट होकर तकरीबन 6 किलोमीटर बैक पे चला गया है। वो क्या चीज़ है, वो जानवर वगैरह की कोई खाल वगैरह? मशकीज़ा है। मशकीज़ा है वो तो। ये इनके बर्तन्स, ये लेदर की चीजें क्या होती हैं? जानवरों की सारी खाल ही होती है। इसको पॉज करके निकालोगे तो फिर वो शाही बावर्ची खाना है ये। इसको थोड़ा पॉज करके निकालो सर। जी जी। डायरेक्ट वीडियो पे छोड़ो ना, ये बहुत लंबा जाएगा। सही कह रहे हैं वो पोस्ट 700 फीट पे है, 2600 मीटर्स पे है। सही। ये रॉयल थ्रोन था, मीर ऑफ फुंजा का शाही तख्त था। यहाँ पे मीर ऑफ फुंजा बैठा करते थे, फ्लोर पे मिनिस्टर बैठते थे, यहाँ पे दरबार लगाया जाता था, यहाँ पे फैसले हुआ करते थे। आपके सामने राका पोशी है, दुनिया की 27वीं नंबर की चोटी है, पाकिस्तान में इसकी 12वीं नंबर है। ये 7788 मीटर्स है। दरमियान में दीरान पीक है। ये सामने जो है सर जी, ये बिल्कुल फ्रंट पे ये दीरान पीक है। आपके लेफ्ट पे जो है गोल्डन पीक है। ये जो है सर जी गोल्डन पीक है। बिल्कुल आपके बैक साइड पे सर ये जो है उल्तर ग्लेशियर्स है। नीचे किचन में जो आपको फ्रिज के तौर पे दिखा रहा था, यही ग्लेशियर्स इस दीवार के साथ कनेक्ट हुआ करते थे। 2 किस्म के पहाड़ी जानवर पाए जाते हैं, मारखोर, मार्का पोलो शीप। ये दरमियान में मारखोर है, दोनों आईबैक्स हैं सर, गिलगित बल्तिस्तान के डिफरेंट एरियाज में पाए जाते हैं। सो ये मीर फुंजा का रॉयल थ्रोन था, तख्त था सर जी। यहाँ पे मीर फुंजा बैठा करते थे और नीचे पोलो भी देखा करते थे सर। हेलो, अस्सलाम, हाउ आर यू? हाँ ये सो आप मेहमानों को बताते चले सर जी, ये उस जमाने का रिसेप्शन हॉल था। स्पेशली कोई मेहमान आते थे तो यहाँ पे इनके लिए वेलकम की जाती थी। यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स के पिक्चर्स हैं। एक जो है यहाँ के रूलर्स हैं, किंग्स हैं, मीर्स हैं। दूसरी तरफ आपके बैक साइड पे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, आगा खान्स हैं। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी इस्माइली मुसलमान हैं, इनके स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। इनके साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं है। सो आगा खान जो है, आगा का टाइटल ईरान ने दिया था। 46 इमाम शाह हसन अली शाह को आगा का लक़ब मिला था ईरान के हुक्मरानों से। आगा बुजुर्गी को भी कहते हैं, बादशाहों का बादशाह भी कहा जाता है। 47 इमाम है आगा खान 2 है, शाह अली शाह है। देन 48 इमाम है शाह सुल्तान मोहम्मद शाह है, आगा खान 3 है। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, पाकिस्तान में इनको सर आगा खान के नाम से पहचाना जाता था। कायद आज़म के साथ मिलके मुस्लिम लीग की बुनियाद इन्होंने रखी थी। मुस्लिम लीग के सदर भी रह चुके हैं। पाकिस्तान बनाने में इन्होंने ब्लैंक चेक दी थी। ओमान से गवादर खरीद के पाकिस्तान को इन्होंने दिया था। करंट जो इमाम है हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान है। गिलगित बल्तिस्तान स्पेशली पाकिस्तान में इनके 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है, आगा खान एजुकेशन सर्विस और हेल्थ सर्विसेज पे। सो राजी जो है यहाँ से स्टार्ट है। मीर गज़न खान 1 है, इनका स्केच है, ओरिजिनल शेप नहीं है, ये इनका स्केच है। 1945 में मीर मोहम्मद जमाल खान ने इस किले को छोड़ा था। करंट जो मीर फुंजा है, मीर गज़नफर अली खान है, प्राइम डोनर बल्तित फोर्ट गिलगित बल्तिस्तान का ये एक्स गवर्नर भी रह चुके हैं। साथ में इनकी वाइफ है, उनका बड़ा बेटा है। ये करंट मीर फुंजा और इनकी फैमिलीज हैं। ये जो ड्रेसेस हैं सर मीर फुंजा और इनकी फैमिलीज की हैं। किसी खास ओकेजन पे इनको पहनाया जाता था। ये हुंजा स्टेट का फ्लैग था, ब्रिटिश ने बनाया हुआ हुंजा स्टेट का फ्लैग था। चांद सितारा जो है इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है।
नीचे जो एरो है पावर सिंबल के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता था। ये रुश कहते हैं, मार्को पोलो शीप है, हम लोग इसको रुश कहते हैं। मार्को पोलो इटालियन एक्सप्लोरर था, इन्होंने आके इस शिप को देखा था, सो इसका नाम मार्को पोलो शिप रखा गया है सर। ठीक। ये रॉयल समर बेडरूम था सर, मौसम गर्मा का शाही ख्वाबगाह था। ये जो कारपेट है मीर ऑफ हुंजा के लिए बाहर तख्त पे बिछाई जाती थी। हुंजा और चाइना के दरमियान तिजारती एग्रीमेंट्स है, ये ट्रेड एग्रीमेंट्स है, चाइनीज और फारसी पर्शियन में लिखी गई है। सो ये हुंजा और चाइना के दरमियान तिजारती मुआहदे हैं। ऊपर जो डिजाइन है, ऊपर जो वो आपके बिल्कुल फ्रंट पे जो सीलिंग है, ये कश्मीरी डिजाइन की सीलिंग है, ब्रिटिश टाइम में इसको एडिशन किया गया है। ये जो विंडोज है, ये जो आगे जो बालकनी है, ये आल्सो दिस वाज आल्सो एडिशन इन ब्रिटिश टाइम। 1915 से लेके 1930 तक इसको एडिशन की गई है सर। सो सर जी ये कश्मीरियन डिज़ाइन का बालकोनी है, समर बालकोनी, सनरूम भी कहा जाता है। उस ज़माने में मेड्स फैमिली बैठ के यहाँ से नीचे पोलो भी देखा करते थे। ये जो सामने कार पार्किंग जो एरिया है, शायद आपकी भी गाड़ी खड़ी हो जी, ये बिल्कुल उस ज़माने का पोलो ग्राउंड था। बिफोर 1974 ये दिस वाज द बिग पोलो ग्राउंड सर। अभी स्कूल ग्राउंड बन गया है, यहाँ पे पोलो मैच खेला जाता था। ये जो कलरफुल ग्लासेस है, ये कश्मीरियन डिज़ाइन के कलरफुल ग्लासेस है, ब्रिटिश टाइम में इसको एडिशन की गई है सर जी। ऊपर जो पिक्चर लगे हैं, हम लोग इनको गशपूर कहते हैं। गशपूर कज़न को कहा जाता है, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के लिए इनके खिदमात है। आपके लेफ्ट साइड पे सर जी ये 1950 की तस्वीर है, ये 1950 की तस्वीर है सर। बल्तिक किले से ली गई है, मीर मोहम्मद जमाल खान है। करंट जो मीर ऑफ हुंजा है, मीर गज़नफ़र अली खान की पिक्चर है, 1950 में ली गई है। दरमियान में अल्तिफ फोर्ट की पिक्चर है, 1945 की है। मीर ऑफ हुंजा है, साथ में इनकी वाइफ है, रानी ऑफ हुंजा है। अक्रॉस द रिवर नगर रियासत की राजा की बेटी थी। 13 साल पहले 98 की एज में 2006 में इनकी डेथ हो गई है। साथ में इनका स्केच है। 1915 से लेके 1920 तक पहला टेलीफोन ब्रिटिश में हुंजा में लेके आए थे। दिस वाज द फर्स्ट टेलीफोन ब्रिंग बाय द ब्रिटिश सर। 2000 ये उस जमाने का विंटर बेडरूम था सर। विंटर किचन के तौर पे भी इस रूम को इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे कुकिंग की जाती थी, खाना बनता था, रूम टेम्परेचर भी गर्म रहता था। ये सामने गोरा कहते हैं बेबी कोट है, 1 साल तक बच्चों के लिए अभी भी घरों में हम इसको इस्तेमाल किया करते हैं। इस पे पुरानी आयात भी लिखी जाती है किसी की नजरी से बचने के लिए। ये बेबी कोट है सर जी। इसके ऊपर ही 2 कुरान पाक हैं, 300 साल पुरानी ये कुरान पाक है, ये 200 साल पुरानी कुरान पाक है, हाथ से लिखी गई है। आपके सामने जो है वुडन प्लेट्स हैं। उस जमाने में लोग इकट्ठे खाने के लिए इन बर्तनों को इस्तेमाल किया जाता था। बोर्ड की तरह काम किया करते थे, स्पेशली सर्दियों के मौसम में इनमें ड्राई फ्रूट स्टोर किया जाता था सर जी। सो उस ज़माने का ये विंटर बेडरूम है। विंटर किचन के तौर पे भी इस रूम को इस्तेमाल किया जाता था। सर का ख्याल रखना प्लीज। अब चले सर जी, ये इंटीरियर असेंबली हॉल थी, अंदरूनी दरबार भी कह सकते हैं सर जी। बारिश गर्मी में भी ये हॉल इस्तेमाल किया जाता था। ये चाइनीज़ करेंसी है, पेपर करेंसी है, चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है। 1920 से 23 तक की नोट्स हैं, साथ में टूल्स हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। शादी ब्याह पोलो मैचेस के दौरान इस म्यूज़िक को इस्तेमाल किया जाता है। आपके पाँव के नीचे जो कारपेट है, हम लोग इसको शर्मा कहते हैं। यॉर्कशियर इसकी वूल से बनी जाती थी, स्पेशली हमें ठंड से बचा लेती थी। ये सामने रशियन गन्स है सर, ये जो आपके सामने पड़े हैं सर, दीज आर द रशियन गन्स। एज ए डिफेंस हंटिंग के तौर पे भी इनको इस्तेमाल किया जाता था। आपके सामने जो कारपेट है, इस कारपेट को फोर्टियन कारपेट कहा जाता है। सिंकियान चाइना में एक शहर है,
200 साल पुरानी कारपेट है, कैमल की बूल से बनी गई है। सो ये चाइना की कारपेट है सर जी। सो अंदरूनी दरबार के तौर पे भी बारिश गर्मी में भी इस हॉल को इस्तेमाल किया जाता था। सो आप मेहमानों को बताते चले सर जी, आप मेहमानों का आने का सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग अस सर जी। ये हमारा आखिरी रूम था। आई होप यू हैव एंजॉयड द टूर प्लीज। सो अभी हम एग्जिट यहाँ से लेंगे। ठीक है, थैंक